Hello, welcome all of you. Welcome all of you to Hello Teachers. So, from today, I am going to start the CDP Master Series for all the TET exam across the country, like CTET, REIT, UPTET, SuperTET, etc. So, in this Master Series, I will be discussing everything about child development and pedagogy, and it will be in the many parts according to the topics. Okay. So today in this first video, I am going to discuss about the concept of growth and development, and thereafter there will be another class on another topic. Okay, so this series will continue. And before starting, I would like to request all of you kindly share the video if you find it helpful, and don't forget to subscribe and like the videos and subscribe the channel. And if you have any doubt regarding any topic, then let me know in the comment section. Okay. And one important announcement, when I'm going to take the classes, so the class will continue in bilingual. Okay, so there will be a mixture of English and Hindi language both. Okay, so that all the English medium students and all the Hindi medium students will get benefited. Okay, and before starting, I would like to request all of you, follow all the classes regularly and maintain your regularity always. And if you have any doubt regarding any topic, kindly let me know. Okay, so let's start with the first class. So today we are going to discuss about what is growth and what is development, and that is a very important topic regarding your TET exams. Always 2-3 questions from this topic asked in the exams, so watch it carefully and memorize all the things. Okay, so the class will continue in bilingual mode. Okay, so today we are going to discuss chapter 1, that is the concept of growth and development. So first of all, we have to know what is development. Okay, तो हमको पहले जानना है कि डेवलपमेंट क्या है. सो डेवलपमेंट को समझने के लिए हमको ये जानना है कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है ये. So here I have the definition of development. Development generally refers to as growth in the physical, mental, emotional state of an individual. It indicates changes related to growth and moves toward maturity. Okay. So डेवलपमेंट मेनली क्या मीन करती है? डेवलपमेंट मीन करता है कि हमारे फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल जो चेंजेस होते हैं. फिजिकल मतलब जैसे कि जब हम पेट में होते हैं, माँ की पेट में होते हैं, तब हम दिखने में ऐसे नहीं होते. पहले से ही हम दिखने में ऐसे इंसान की तरह नहीं होते. पहले हम एक सिंगल सेल होते हैं. उस सेल जब धीरे धीरे डेवलप करता है तो फिर एक इंसान का रूप लेता है. तो डेवलपमेंट आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है? ऊम से. ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर्स ऊम एंड इट कंटिन्यूज अप टू द डेथ. सो ऊम से हम एक इंसान का रूप लेकर हमारा जन्म होता है. उसके बाद धीरे धीरे हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा हाथ पैर वो सब डेवलप होना शुरू करता है. पहले हम चल नहीं सकते, हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं. सो ऑल दिस आर टुगेदर कॉल्ड एज डेवलपमेंट. इट कैन बी मेजर्ड एंड इवन इट कांट बी मेजर्ड. ओके, सो दैट इज़ व्हाट डेवलपमेंट मीन्स. डेवलपमेंट फिजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स हम कुछ देर बाद समझेंगे. उसके बाद हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द वूम एंड कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल. जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कहाँ से? माँ की पेट से, फ्रॉम द वूम, एंड इट कंटिन्यूज अप टू द डेथ. जब इंसान मरता है तब तक वो कंटिन्यू होता है डेवलपमेंट. ओके, सो इट्स ए लेंथी एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज ए सर्टेन सीक्वेंस. तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता कि आज हमारा हाथ डेवलप हो गया तो कल हमारा सर डेवलप हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. वो एक सीक्वेंस, सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करता है, और ये सीक्वेंस सबके लिए एक ही है. ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान का पहले सर आ गया, फिर कोई इंसान का पहले पैर आ गया. ऐसा नहीं होता है. सबका पहले सर ही आता है या फिर हार्ट डेवलप होता है, उसके बाद
धीरे से अंदर से फिर बाहर की तरफ डेवलपमेंट प्रोसीड होता है। अंदर का पार्ट पहले डेवलप होता है फिर बाहर की तरफ। जैसे कि बच्चे का पहले हार्ट डेवलप होता है, उसके बाद उसका ब्रेन, मतलब कि सर का बाल। जैसे हम देखते हैं कि अगर एक बच्चे का जन्म होता है, उसके सर में थोड़ा सा ही बाल होता है, या फिर किसी किसी बच्चे का सर में बाल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो वो जब बड़ा होता है तब उसका धीरे धीरे बाल भी निकल कर आता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस। सो डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलोज ए सर्टेन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में चलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। जो मैंने अभी कहा, डेवलपमेंट क्या होता है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये चलता रहेगा, एक प्रोसेस में ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअसली चलता है अप टू डेथ। ओके, सो इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव मीन्स द थिंग्स व्हिच वी कैन मेजर, जैसे कि हाइट, और फिर वेट। जैसे कि वेट, जन्म में जो एक बच्चे का जो वेट होता है, जो जब वो जन्म लेता है, जब वो 5 साल का होता है, उसका वेट सेम नहीं रहता है, बढ़ता है। पहले वो 2 kg का होगा, फिर 5 kg, फिर 10 kg, ऐसे। तो ये क्या हुआ, उसके क्वांटिटी में इंक्रीज। इसको हम मेज़र कर सकते हैं। उसका वेट कितना है, 10 kg, वेट कितना है, 15 kg, वेट कितना है, 20 kg। वैसे ही हाइट, किसी का हाइट पहले से इतना लंबा नहीं होता है, छोटे से वो धीरे धीरे लंबा होता है, मतलब कि उसका हाइट बढ़ता है, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ऐसे बढ़ता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव प्रोसेस। नाउ व्हाट इज़ क्वालिटेटिव? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी को समझने के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो एक बच्चे को हमने एक बॉल दिया, एक छोटे बच्चे को, एक साल के बच्चे को हमने एक बॉल दिया, तो वो क्या करेगा, उस बॉल को वो हाथ पैर अपने शरीर सब लगा देगा उस बॉल को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर हम सेम बॉल को एक 5 साल के बच्चे को देंगे, तो वो सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करेगा उस बॉल को पकड़ने के लिए। इसे कहते हैं डेवलपमेंट, दैट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वालिटी में चेंज हुआ है, इसकी थिंकिंग में चेंज हुआ है। उसको पता चल गया कि मुझे इस बॉल को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर का जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक हाथ से इस बॉल को पकड़ सकता हूँ। क्या हुआ, ये क्वालिटी में चेंज हुआ, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज हुआ, तो इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव। ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट्स नॉट ईजी, इट्स ए प्रोसेस विच इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना इजी नहीं होता है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो वो फैक्टर्स क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन प्रेडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट टू ए सर्टेन एक्सटेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, सबका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। सब, इन केस ऑफ एवरीवन, in case of all individuals, it is different, it is not the same. Development will be different according different individuals. Okay, तो डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस बच्चे का डेवलपमेंट धीरे से हो रहा है, इस बच्चे का डेवलपमेंट फर्स्ट हो रहा है। जैसे कि हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप लोग टीचर बनेंगे कभी, तो आप क्लास में ज़रूर दिखेंगे कि एक बच्चा कोई भी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है, और दूसरी तरफ सेम क्लास का और एक बच्चा वो प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करता है। उसका जो मैच्योरिटी लेवल है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उस पॉइंट पे नहीं गया है, जो उस पॉइंट पे उसको जहाँ पर जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सेम पेस में नहीं हो रहा है। वो एक कोई फास्ट चल रहा है तो कोई धीरे चल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और ये चलता रहेगा। किसी के केस में धीरे चलेगा तो किसी के केस में स्लोली चलेगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा इतनी देर में ये सीख जाएगा, ये बच्चा इतनी देर में ये कर लेगा। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज जनरल टू स्पेसिफिक, एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट सेम फॉर ईच इंडिविजुअल। जो मैंने अभी कहा था
कि इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट। डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, किसी का ब्रेन शार्प होगा, किसी का ब्रेन शार्प नहीं होगा। तो डेवलपमेंट इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इट्स नॉट सेम, एक जैसा नहीं होता। और डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? जनरल से स्पेसिफिक। जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चे को, 1 साल के एक बच्चे को मैंने अगर एक पेन दे दिया या फिर एक बॉल दे दिया, तो वो उस पेन को या फिर बॉल को पकड़ने के लिए अपना हाथ पैर सब कुछ यूज़ करेगा। अगर हम सेम बॉल को एक 5 साल या फिर 10 साल के बच्चे को दे देंगे तो वो सिर्फ अपने उंगली या फिर अपना हाथ का यूज़ करेगा, वो पैर का या फिर शरीर का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है, उसको इतना डेवलपमेंट उसमें आ गया है कि उसको पता है इस बॉल को पकड़ने के लिए मेरा एक उंगली या फिर मेरा हाथ ही काफ़ी है। तो इसे बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट में। सो द फर्स्ट वन इज फिजिकल। Physical development. It refers to the advancements and refinements of motor skills. It is related to the growth and skill development of body, including brain, muscles and senses. तो अभी तक हमने कुछ हद तक जान लिया है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हमारा बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, इन साइज, इन वेट, इन हाइट, जो भी डेवलपमेंट होता है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट। और इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, किसी का हाइट बढ़ेगा, किसी का वेट बढ़ेगा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर 2 चीज़ आता है, एक है फाइन मोटर स्किल और एक है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? यूज़ ऑफ स्मॉलर मसल्स लाइक पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा। तो फाइन मोटर स्किल में हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे मसल होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लिखना, राइटिंग। व्हेन यू राइट वी जस्ट यूज़ आवर फिंगर्स, ओनली फिंगर्स, हम सिर्फ अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं जब हम लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना, या फिर चम्मच को पकड़ते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? जिसमें हम अपने पूरे बॉडी का मसल यूज़ करते हैं, जैसे कि जंपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इसमें क्या होता है, हमारे हाथ पैर सबका यूज़ होता है, पूरे बॉडी का मसल का यूज़ होता है। सो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल। ओके, सो दैट इज़ व्हाट फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल मीन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. So if you want to know what is cognitive development, you can just directly say the improvement in intelligence. मेरा इंटेलिजेंस कितना है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. किसी चीज़ को समझने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मुझ में कितना एनर्जी है या फिर मुझ में कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेरा इंटेलिजेंस कितना है किसी चीज़ को समझने के लिए या फिर याद रखने के लिए या फिर इसको अप्लाई करने के लिए. ओके, नाउ सोशल डेवलपमेंट. Social development means the acquisition of the ability to behave in accordance with social norms and expectation. Social development क्या होता है? We are all social beings. तो हमको जब सोसाइटी में चलना होगा तो सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है. सोसाइटी में हमारा कुछ एक्ट एक्सेप्ट होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, नहीं तो हम सोसाइटी में नहीं रह सकते. वी आर ह्यूमन्स एंड वी आर सोशल बींग्स. हम कभी भी अकेला नहीं रह सकते. तो अगर हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए और करना ही पड़ता है. तो ये जब हम सीखते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट. एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो गया. एक छोटे बच्चे को पता नहीं है कि सोसाइटी में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है. लेकिन हम जैसे बड़े होते हैं, डेवलपमेंट हम में और ज़्यादा होता है, तब हमको समझ में आता है जैसे कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. वी कैन डू दिस एंड वी कांट डू दिस. ओके, दैट इज़ व्हाट सोशल डेवलपमेंट मीन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, emotional development and moral development. So emotional development and moral development are, they are almost similar things. Okay,
इमोशनल डेवलपमेंट, इट इज़ द डेवलपमेंट इन द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि मान लो हम ऐसे कोई सिचुएशन में फंस गए कि किसी ने हमको लेकर कोई ऐसा बात बोल दिया हो जो हमको बहुत बुरा लगा और हमको बहुत गुस्सा आ गया। तो हम सपोज़ दो लोग हैं, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सपोज़ पहले वाला जो है वो उस सिचुएशन में बहुत उसको गुस्सा आ गया और वो रिएक्ट किया, किसी को मारा या फिर किसी को कुछ बुरा भला कह दिया। लेकिन दूसरा वाला जो है उसको पता चल गया कि ठीक है, वो ऐसा इंसान है, वो सबके साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, बोलने दो, उसके बोलने से मेरा कुछ नहीं आता जाता, मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं रहूँगा, उसके बोलने से मैं बुरा नहीं बन जाऊँगा, उसके बोलने से मैं अच्छा नहीं बन जाऊँगा। तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो इसको ऐसे हैंडल करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। हम उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। ओके, अगर हमको एक सिचुएशन दिया गया है, उस सिचुएशन में हम किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, सो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी in our life. Without emotional development we can't handle any situation so easily. Okay, next moral development. Moral development क्या होता है? Moral development is like जैसे कि हमारे बड़े होते हैं तो हमको बड़े को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए. We have to respect our elders. So that is what moral development. And it also comes with the maturity. छोटे बच्चे में ऐसा नहीं होता है, उनको हमको सिखाना पड़ता है कि इनके साथ ऐसे बिहेव करो, इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करो. सो इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द इमोशनल डेवलपमेंट. ओके, सो आई होप द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ. व्हाट इज़ ग्रोथ? सो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ग्रोथ क्या है. ग्रोथ रेफर्स टू increase in size or mass of the body that may lead to structural changes which are permanent. Growth is observable and measurable. The rate of growth is not uniform. It is quantitative in nature and doesn't continue throughout life. ये सब हमने अभी डिस्कस किया है. ग्रोथ क्या है? जो मेजरेबल है, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं. इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, ये सबको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे. एंड ग्रोथ इज ऑलवेज डेवलपमेंट. ओके, सो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ नहीं चलता. डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, बट ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. अगर आप 20 साल के हो गए हो, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी हाइट में इंक्रीज नहीं होता है. आपका हाइट जैसा है वैसा ही रहता है. लेकिन डेवलपमेंट वो चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन ग्रोथ नहीं चलता है. सो ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ एंड इट इज़ ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ कभी क्वालिटेटिव नहीं होता. क्वालिटी में जो इंक्रीज होता है वो डेवलपमेंट के अंडर जाता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो होता है ग्रोथ. ओके, सो ग्रोथ एक स्टेज पे जाकर रुक जाता है. ओके, सो इसे याद रखना. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आई होप टिल नाउ हमने जितना भी डिस्कस किया है आपको पता चल गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है. तो मैं फिर भी एक जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेनली क्या क्या डिफरेंस है. तो जैसे कि आपको पता है, ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट. आपका साइज में इंक्रीज हो गया हो, वेट में इंक्रीज हो गया हो, हाइट में इंक्रीज हो गया हो, सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ. लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ हाइट, वेट और साइज में इंक्रीज नहीं होता है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट. बट डेवलपमेंट में और एक चीज़ भी होता है, वो है कैरेक्टर. आपका कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, आपका क्वालिटी इसमें इन्वॉल्व होता है, आपका जो मैच्योरिटी है वो भी इन्वॉल्व होता है. आप मैच्योर हो कि नहीं, आपका क्वालिटी में इंक्रीज होता है या फिर चेंज होता है. कल अपने किसी के साथ बुरा बिहेव किया, फिर आपको धीरे धीरे जब टाइम चलता गया आपको पता चला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर आप क्या करते हैं? वो बर्ताव फिर से नहीं करते. दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वालिटी या फिर कैरेक्टर. सो दैट इज़ व्हाट डेवलपमेंट मीन्स. डेवलपमेंट में आपका क्वालिटी भी इन्वॉल्व होता है. ओके, नेक्स्ट, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. जो मैंने अभी डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव का मतलब जो हम मेज़र कर सकते हैं, हाइट, वेट,
और क्वालिटेटिव का मतलब जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन मेज़र नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं, हाँ ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ओके, सो दैट इज़ व्हाट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मीन्स। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। नेक्स्ट, ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस अप टू द डेथ। ठीक है, तो ग्रोथ कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, एक स्टेज पे जाके रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो हमारे मदर की वूम्ब में शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम्ब ऑफ मदर एंड कंटिन्यूस अप टू द डेथ। मरने तक डेवलपमेंट होता रहता है। सो डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट, इट कैन बी मेजर्ड एंड इट कान बी मेजर्ड। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं इन यूनिट्स लाइक केजी, हाइट जैसे कि फीट, इसमें हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम कोई भी यूनिट में मेज़र कर नहीं सकते, सिर्फ हम इसको ऑब्जर्व या फिर फील कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सम important and basic differences between growth and development. I hope all these are clear to all of you. Now the last topic of today's class, very important, factors affecting growth and development. कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सब में एक जैसा ही होता है। आप लोग खुद ही मेज़र देख सकते हो कि अगर आपका एज का कोई था जब आप क्लास 7 या फिर क्लास 8 में पढ़ते थे, आपका हाइट शायद बहुत ज़्यादा था, उसका हाइट शायद बहुत कम था, लेकिन आप दोनों तो सेम क्लास में थे, एज भी सेम है, तो फिर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ सेम क्यों नहीं हुआ। सो ये कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं, इसीलिए सबके केस में ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट सेम नहीं होता। All these are different according to different individual. So what are those factors? Let us discuss. Okay, the first one is heredity. Heredity means जो हमारे फादर और मदर होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, उनसे हमको हमारा बॉडी का कलर मिलता है, या फिर आँखों का कलर, बालों का कलर, हाइट, वेट या फिर इंटेलिजेंस, वो हमको कहाँ से मिलता है, हमारी हेरिडिटी, हमारे माता पिता से मिलते हैं। सो हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपके माता पिता शॉर्ट हाइट के हैं तो 100% चांस है कि आप भी शॉर्ट हाइटेड होंगे। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस कि आप भी शॉर्ट हाइटेड होंगे। अगर आपके माता पिता का बॉडी कलर अगर ब्लैक होगा, आप ब्लैक होंगे, देयर इज़ अ फुल चांस। एंड इफ़ योर मदर एंड फादर हैव ए फेयर स्किन, देन you also have the high chance that you may also be a fair skin man. ओके, आपका भी स्किन का कलर फेयर हो सकता है। तो ये सब क्या, ये सब है हेरिडिटी। हेरिडिटी के ऊपर हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे किसी फैमिली में किसी भी माता पिता को अगर म्यूज़िक का शौक़ है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी या फिर हाई चांस दैट उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी वो शौक़ होगा ही होगा, म्यूज़िक का शौक़ होगा, या फिर जो भी शौक़ उनके माता पिता में थे वो कुछ ना कुछ उनके बच्चे में भी होगा। इंटेलिजेंस की तरफ भी हो सकता है, उनके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, हाई चांस। तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी, हेरिडिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, एनवायरनमेंट, इट्स ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप किस एनवायरनमेंट पे रहते हो, ठीक है ना, आप जिस एनवायरनमेंट पे रहते हो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट उस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि खाना, अगर हम साउथ इंडिया में रहते, वहाँ का खाना एक तरह का है। अगर हम नॉर्थ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते, वहाँ पर लोग जो खाते हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, खाने का डिफरेंस होता है। हमारे जो वेदर होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा फेयर स्किन के होते हैं, उनका स्किन थोड़ा सा फेयर होता है। लेकिन जो साउथ में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, उनका स्किन थोड़ा सा डार्क होता है। सो दिस इज़ फॉर द वेदर, फॉर द एनवायरनमेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या करता है, एनवायरनमेंट भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, so I hope this is clear. Next one is
न्यूट्रिशन इट्स ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। न्यूट्रिशन, आप जब छोटे रहते हो, जब आप छोटे हो तब आपको न्यूट्रिशन कैसे मिला, उस बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिला, अच्छा मिला कि बुरा मिला, उसके ऊपर भी हमारा जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जब वो छोटे होते हैं उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, तो इसके कारण वो क्या होता है, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं कोई, या फिर उनका ग्रोथ जल्दी नहीं होता है। एज हो गया मतलब ग्रोथ नहीं हुआ, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब उनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला। इसलिए अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर हमको छोटे से लेकर जब हम बड़े होते हैं, अगर हमको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और अगर नहीं मिलता है, कोई भी कमियां रह जाती है, तो हमें भी कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगा। ओके, दैट इज़ व्हाट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, जेंडर। तो ये भी इंडिया में, पर्टिकुलरली इन इंडिया, जेंडर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे, आप लोग खुद ही देख सकते हो। अगर कोई फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है और कोई एक फैमिली में लड़की का जन्म होता है, किस फैमिली में लोग ज़्यादा खुश होते हैं या फिर सीरियसली लेते हैं? ऑब्वियसली जिस फैमिली में लड़का होता है, लड़के के लिए एक अलग लेवल का एक सब कुछ अरेंजमेंट होता है, उसका खाना पीना सब कुछ एक अलग लेवल का, वहाँ पर एक लोगों में एक एक्साइटमेंट होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फैमिली अभी भी है इंडिया में जहाँ पर अगर लड़की होता है तो उनके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, वो लोग इतने खुश नहीं होते, तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली उनके न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। क्योंकि एक लड़के को जितना देना चाहिए वो लोग ट्राई करते कि उससे भी उसको ज़्यादा मिले, लेकिन इन केस ऑफ गर्ल वैसा नहीं होता है। उतना सीरियसली उसका न्यूट्रिशन उसको ठीक से मिल रहा है कि नहीं, उसको सब मिल रहा है कि नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उतना सीरियसली वो लोग नहीं लेते। सभी नहीं, कुछ कुछ अभी भी ऐसा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, ऐसे जगह है जिसमें ये चलता है, जेंडर बायस चलता है। तो ये भी क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये है आज का पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आज जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया, जो भी हमने जाना, ये आप सब लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। मैंने जो भी डिस्कस किया उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई भी डिस्कशन नहीं था, पॉइंट टू पॉइंट जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमने एकदम डिटेल्स में हमने डिस्कस किया। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे तो नहीं लगता। तो अगर इसके बाद भी आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको फिर से क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जब टॉपिक और ये जब सीरीज़ जब ख़त्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ईच टॉपिक वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs। तो ये करने से क्या होगा, ये जो टॉपिक है, टॉपिक आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोग फुल्ली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग and the series CDP master series will continue topic by topic. So I would like to request all of you follow the classes regularly and don't forget to share the video if you find it helpful, and subscribe the channel, like the video, and it gives me a huge motivation to do something extraordinary for you. And thanks for watching, and if there was any mistake regarding any topic, kindly let me know in the comment section. I am also a learner like you, so it's not impossible that I can also make a mistake. So kindly let me know and stay tuned with the channel. Thanks for watching. Best of luck for your exams. So see you in the next video with another topic. Okay, thanks for watching.